breaking news coming in. Prime Minister Modi has tweeted on Uttarakhand horror. He says, and I quote, "I'm constantly monitoring the unfortunate situation in Uttarakhand. India stands with Uttarakhand and the nation prays for everyone's safety there. Have been continuously speaking to senior authorities and getting updates on NDRF deployment, rescue work and relief operation." So for our viewers who have tuned in, there has been a glacial burst in Uttarakhand's Chamoli district. It has triggered an avalanche. There is massive flooding along the Alaknanda and Dhauliganga rivers. Rishiganga project has been hit due to the flooding. The project officer has revealed that 50 people are missing at the moment. Several houses along the riverside, as you can see on your screens right now, suffered. They've suffered severe damage. And casualties are feared, although we don't have a count of the casualties at the moment. Tapavan Barrage has also suffered huge damage due to this landslide. Air Force has been put on high alert. 10 teams of SDRF, I beg your pardon, and fire engineers have reached the spot. They have started the rescue and relief operation. 200 ITBP men have been roped in to carry out rescue operations. Home Minister Amit Shah has spoken to Chief Minister Trivendra Rawat and DG NDRF about the situation. After the natural disaster, alert has also been sounded off in Haridwar and Rishikesh. Uttar Pradesh has also sounded off alert in Kanpur, Bijnor and Varanasi. पीपल कोटी एक जोशीमठ से पहले एक कस्बा है बद्रीनाथ मार्ग पर, वहाँ उसके बिल्कुल वहाँ से निकल रहा हूँ और इधर तो पानी जो है, जो पानी जो एवलांच जो है उसका पानी यहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे तक पहुँच गया है अलकनंदा में, लेकिन इधर कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अभी जो पानी समय दिख रहा है, ये नहीं लगता कि इससे किसी तरह का नुकसान आगे होगा। जहाँ ये एवलांच आया है ऋषि गंगा में, वहाँ पर जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जो लग रहा था वो डैमेज हुआ है पूरी तरह, ये खबर है। और एनटीपीसी का जो पहले से वहाँ पर एक प्रोजेक्ट तपोवन में, हम 15-20 मिनट में उधर पहुँचेंगे तो फिर और जानकारी हमको मिल पाएगी। बाकी पूरे वैली को अलर्ट कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया है, गृह मंत्री जी का भी फोन आया है, जल संसाधन मंत्री जी का भी फोन आया है। वो लगातार राज्य से संपर्क में, और उन्होंने एनडीआरएफ को भी अलर्ट किया है। हमारी एसडीआरएफ वहां पहुंच चुकी है। We're cutting straight across to our sister channel Aaj Tak. We're getting some updates right there. Let's go straight across to Aaj Tak. उसकी टीम मौजूद थी। आईटीबीपी का वहाँ एक बटालियन है जोशीमठ में, वहाँ के कमांडेंट से वार्ता हुई, उनकी 2 टीमें लग चुकी हैं और आर्मी के भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो भी लगी हुई हैं। तो इसलिए कम से कम हमारे पास कुछ टीमें मैन पावर ऑलरेडी लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम देहरादून से कई घंटे पहले रवाना हो चुकी थी, वो भी पहुंच जाएगी। वहां पर जो बांध बन रहा था, वहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है। और जो टेहरी बांध उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूँगा।
और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। बेटा NDRF भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत All right, that's the latest coming in right there. We're getting our reporters who are bringing us up to speed with the very latest details. We've got helpline numbers which we will be flashing on your screens right now. The helpline numbers have been provided by the Chief Minister of Uttarakhand on his Twitter handle. On your screens right now, the visuals that we are getting from Uttarakhand, Chamoli. Helpline numbers also on your screens right now, 1905 and 1070. There's one more helpline number. It'll come on your screen. Yes, there you go. That's another helpline number. So this is all information that you can use at the moment. So for our viewers who do not know what has happened, there's been a glacial burst in Uttarakhand's Chamoli district. It's triggered off avalanche and massive flooding along Alaknanda and Dhauliganga rivers. Aaj Tak again has updates for us. Let's cut him straight across to our sister channel. वो देहरादून में ऑलरेडी एक स्टैटिक टीम रहती है, वो रवाना हो चुकी थी कई घंटे पहले और वो पहुंचने वाली होगी। 3 और टीमों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, वही मैं कह रहा था। हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद से एयरलिफ्ट किया जा रहा है और किसी भी वक्त एयरलिफ्ट हो जाएगा और वो देर आफ्टरनून तक वो भी पहुंच जाएंगे और रिलीफ और रेस्क्यू में मदद करेंगी। सर, अगर आप जानकारी दे पाएं कि एग्जैक्ट लोकेशंस अगर आपके पास हो, उसके बारे में कोई जानकारी, नुकसान सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है और सबसे ज्यादा मदद की जरूरत किन किन इलाकों में है? देखिए, जो ये रेली ग्लेशियर है वो जोशीमठ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और ऋषिगंगा रिवर पर है। तो जो इम्पैक्ट एरिया है वो वही ऋषिगंगा जो रिवर प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट है, उसी के इलाके में है और उसके नीचे बीआरओ का एक ब्रिज बन रहा था, वो भी है। तो ये दोनों ब्रिजेस जो है अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वहां वर्कर्स थे, तो उसी इलाके में ज्यादा डैमेज होने की संभावना है। हालांकि अभी कोई चीज कहना संभव नहीं है सटीक, लेकिन ज्यादा डैमेज अपर रीचेस में ही हुआ है और उसके बाद रिवर तो डाउन फ्लो करती है, पहाड़ी रिवर है तो डाउनस्ट्रीम फ्लो कर रही है, लेकिन जो डैमेज है वो अपर रीचेस में हुआ है, ऐसी संभावना कही जा सकती है। वहां पर सर क्या ये भी जानकारी अगर आप दे पाएं कि वहां पर क्या आसपास कोई गांव भी थे, कुछ गांव भी थे, क्योंकि खबर ये आ रही कि बहुत सारे घर भी बह गए हैं वहां से। देखिए, ये स्वाभाविक है कि रिहायशी इलाका, पहाड़ी इलाका उतना नहीं होता है, लेकिन नदी के किनारे गांव बसते हैं। नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार